Good morning, everyone. Hello, students. Welcome to my YouTube channel, Math Idol. So today we are going to discuss the least cost method, which is used to solve a transportation problem. We can find the starting solution to a transportation problem by least cost method. Okay. So I am sharing the screen for that. Starting explaining that. So this is transportation problem. So this is least cost method. See, the very first question that we are doing is find the starting solution, or we can say initial solution by least cost method. Least cost method is also called this LCM, and this method is used to find a starting solution to a transportation problem. Starting solution means a rough estimate you can find out how much cost will be incurred to uh, transport the goods from different sources to different destinations. The optimal solution will be given by Modi method only. So we have few different methods to find out the rough estimate. The very first is northwest corner rule that we have already discussed in the previous lecture. This is the next method, least cost method, and the next method that we will be doing in another video is Vogel's approximation method. So this video concentrates only on least cost method, right? So if the question is saying find the starting solution or initial solution by LCM, and this is the way they have written the question. In exams, they generally write down the question like this, or sometimes they specify that this is the source and this is the destination. So the very first thing is you have to uh, check with what are these values given to us. I am explaining these values first. Just see here. We will first set up the transportation problem, right? See, if the destination name is not mentioned in the question, you write down from your side. And if it is mentioned in the question, whatever is given in the question, you have to write down that. Okay. So this is my O1. O1, O2 means origin 1, origin 2. You can write down S1, S2 also, or you can use any other alphabet also, right? So first of all, you have to set up your transportation problem, right? So these D1, D2, D3, D4 are my destinations. See, these 10 to 20 and 11, whatever is given in the question, these are your cost values, per unit cost values that are to be written at this corner of the cell. You should know how the transportation problem is to be set, right? It is always written at this corner. So these are the cost values that we have written, and this values 15, 25, and 10. These are the supply values given to us. Okay, so I am writing the supply here, and supply has to be written in bold so that you will not get confused between cost values and the supply values, right? And now comes to these values which are written at the bottom. These are my demand values. Again, these values are to be written differently from the cost values, right? So we have set up the transportation problem. Whichever method you use to solve the transportation problem, just write down the name of that method above the table so that we understand the method that we have applied here is LC, right? Now come to the very first step of solving the transportation problem. See, we have to first check whether the problem is balanced or not. Because if the transportation problem is not balanced, we cannot solve it, right? So, first of all, find out the total demand, that is 5 plus 15 plus 15 plus 15. This comes out to be 50 units. And now find out total supply.
See, what I have done is I take the total of the demand values 5 plus 15 plus 15 plus 15. Now take the total of the supply values. These are my supply values, so I have to take the total of these values. Okay, so 15 plus 25 plus 10, this is again coming out to be 50. So if total demand is equal to total supply, total demand equal to total supply, then the problem, transportation problem, is balanced. If it is not balanced, if suppose total demand does not come out to be equal to total supply, then the problem is said to be unbalanced, and then in that case we have to first balance it. अब कैसे balance करते हैं, that I will be letting you know in another lecture. Okay, so right now we are concentrating on balanced problems only. Right now we will see how the transportation problem is being solved by, once this condition is satisfied, total demand equal to total supply, now we can apply any method. We can apply, we are concentrating on least cost method, so we can apply LCM on the given transportation problem. See how we have to apply. See, as the name suggests, least cost method, what you have to do, you have to find out the least cost element in this whole table. The cost elements are written at the corner in the cells. Just find out the smallest element amongst all them. So I think the smallest element is this 2 here. So my first entry will come in this cell. Okay. So what you have to do it, make a circle over here, right? And look for the corresponding supply and demand of this cell. देखो G2 के सामने लिखा हुआ है सप्लाई कॉलम में 15 एंड G2 के नीचे लिखा हुआ है डिमांड कॉलम में 15. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक द मिनिमम ऑफ देम. अब दोनों सेम है तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी ले लो. सपोज आई टेक 15 फ्रॉम हियर, राइट. 15 मैंने सपोज कर लीजिए सप्लाई कॉलम से लिए हैं, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज सप्लाई कॉलम को कैंसिल कर दीजिए पूरा, और 15 माइनस 15 आप लिख देंगे 0. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट O1 will give 15 units to D2. ऐसा करने से होगा क्या, D2 की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए डिमांड कॉलम में अब 0 बच गया, बिकॉज उसको 15 यूनिट्स चाहिए थे, उसने 15 के 15 ले लिए, तो अब उसका 15 वाला यूनिट खत्म हो गया. और इधर देखो O1 है, O1 के पास कितना था, आपको 15 यूनिट्स उसके पास सप्लाई करने के थे, तो उसने 15 के 15 D2 को दे दिया. वो ना D3 को दे सकता कुछ, ना D4 को दे सकता, ना D1 को दे सकता, तो आपने दूसरी साइड उसको भी पूरा कैंसिल कर दिया. ठीक है, सो आई विल राइट डाउन दिस व्हाट वी हैव डन. चूज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट in the whole table and make your entry and make your first entry in that cell. ठीक है, अगर बाई चांस 2 हो तो कोई सा भी ले सकते हैं, वैसे हम ये देखते हैं जो बड़ा नंबर सर्कल में देगा वो होगा. ठीक है, वो मैं दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगी आपको. एंड मेक योर फर्स्ट एंट्री इन दैट सेल बाय सेलेक्टिंग द minimum of demand and supply. ठीक है, like here the minimum cost cell is O1 D2 था हमारा सेल. ठीक है, सो मिनिमम ऑफ डिमांड और सप्लाई उसकी कितनी थी, 15. सो एलोकेट 15 टू O1 D2. ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन देखिए. नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट मिनिमम. अब जो भी मिनिमम सेल होगा फॉर द मिनिमम कॉस्ट सेल इन द रिमेनिंग टेबल, राइट. जो भी मिनिमम कॉस्ट सेल होगा रिमेनिंग टेबल में, अब आप उसको देखेंगे और उसमें भी सेम तरीके से एंट्री करेंगे. जब तक आपको एंट्री मिलती जाएगी आप करते जाएंगे. ठीक है, इन द रिमेन देखो कैसे करना है, इधर देखिए बोर्ड पे, ये देखिए. अब जितनी टेबल मेरी बच गई है उसमें देखो मिनिमम कॉस्ट सेल कहाँ पर है. तो मिनिमम एंट्री मुझे 4 की दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पर अब सर्कल बनाऊंगी और मैं यहाँ पर एंट्री करूंगी.
तो मेरा आप देखिए 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड है 5 एंड 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई जो उसके सामने लिखी हुई है दैट इज 10। तो 5 और 10 का जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो 5 और 10 का मिनिमम 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। क्योंकि मैंने 5 जो है डिमांड कॉलम से हटाया था तो पूरा डिमांड कॉलम खत्म कर दो, ठीक है। और दूसरी साइड पर 5 माइनस करके बचा लीजिए कि कितने यूनिट्स आपके पास बच गए अब, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि O3 D1 को 5 यूनिट गुड्स सप्लाई करेगा। तो D1 की कंप्लीट हो गई डिमांड, इसलिए मैंने D1 का पूरा कॉलम काट दिया। और O3 के पास टोटल 10 यूनिट्स थे देने के लिए, उसमें से उसने 5 यूनिट D1 को दे दिया, अभी 5 यूनिट उसके पास और रह गए हैं जो वो D2 को भी दे सकता है, D3 को भी दे सकता है, D4 को भी दे सकता है। तो हमने ये चीज लिख दी यहाँ पे काट के 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट सेल इज O3 D1। नेक्स्ट minimum cost cell is O3 D1. Here the minimum of supply and demand is equal to minimum of 10 and 5 which is equal to 5. So we allocate 5 units to O3 D1, ठीक है। फिर दोबारा से यही काम करेंगे। Now again search for the minimum cost cell, right? Again search for the minimum cost cell and proceed in the similar way. देखो कैसे करेंगे, दोबारा से देखें। दोबारा से आ जाते हैं हम अपनी टेबल पर। अब देखिए जितनी टेबल बच गई है फिर से इसमें से मिनिमम नंबर सेलेक्ट कर लीजिए आप कौन सा है। तो आपका मिनिमम अब कौन सा आएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 में नई एंट्री करेंगे। तो 7 में न्यू एंट्री करने के लिए आपके पास क्या है, अब नीचे देखो डिमांड में है 0 और सप्लाई में है 25। तो अब आपको 0 और 25 का मिनिमम 0 दिखाई दिया तो हमने 0 ले लिया, ठीक है। अब 0 यहाँ से उठाए हैं तो यहाँ कैंसिल हो गया और 25 माइनस 0 25 आ गया, ठीक है। इसका मतलब O2 D2 को 0 यूनिट सप्लाई करेगा, मतलब कोई यूनिट सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल। अब दोबारा से जो ये एंट्रीज बच गई हैं 9, 16, 18 एंड 20, लुक फॉर द मिनिमम। दोबारा से मुझे मिनिमम मिला 9, तो मैं अपनी एंट्री यहाँ पे करूँगी नेक्स्ट। तो अब देखिए 9 के नीचे लिखा हुआ है 15 और 9 के सामने लिखा हुआ है 25। तो इसके सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम आया उसको एलोकेट करेंगे, दैट इज 15 हेयर। सो आई विल टेक द वैल्यू 15। क्योंकि मैंने 15 डिमांड कॉलम से है उठाए हैं तो 15 को काट देंगे यहाँ पे पूरा और यहाँ पर माइनस कर देंगे 25 माइनस 15 दैट इज माई 10, ठीक है। अभी मेरे पास 2 सेल और बचे हुए 18 और 20, तो इनके अंदर एंट्री अब इन दोनों में से जो मिनिमम है उससे सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमारे मेथड का नाम क्या है, एलसीएम। तो हम जो मिनिमम होगा उस पर काम करेंगे। तो 18 में देखिए 5, 18 के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई इज 5 एंड डिमांड इज 15। तो 5 और 15 में मिनिमम है मेरा 5, तो मैंने 5 ले लिया। अब मैंने 5 कहाँ पे से उठाया, सप्लाई में से ना, तो यहीं से इसको पूरा काट दीजिए, ठीक है। अब मेरे पास कितने यूनिट बच गए, दूसरी साइड पे माइनस करने पर 5, 15 माइनस 5 किया, मेरे पास 10 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक अकेला सेल बचा है ये वाला, ठीक है। अगर आपने सारा काम सही किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई और डिमांड दोनों हमेशा बराबर आएंगी, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है कि हमारे पास अब 10 यूनिट सप्लाई करने के लिए बचे हैं और 10 की ही डिमांड है, तो हमने 10 यूनिट सप्लाई कर दिया। आपकी मर्जी है, अगर आपने 10 को सप्लाई साइड से लिया तो सप्लाई को काट के दूसरी साइड पे 0 कर दो, या फिर 10 को डिमांड साइड से लेके सप्लाई साइड पे 0 कर दो, ठीक है। ये जो सर्कल्स आए हैं, दीज सर्कल्स आर कॉल्ड माई बेसिक सेल्स, और इन्हीं सर्कल्स को ही हम अपना आंसर बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन, देखो O1 D2 को 15 यूनिट सप्लाई कर देगा, उसकी 15 यूनिट्स की सप्लाई पूरी हो जाएगी, ठीक है। आप इन सर्कल्स का टोटल देखो, रो टोटल और कॉलम टोटल मैच होना चाहिए। देखो O2 0 यूनिट्स D2 को देगा, 15 यूनिट्स D3 को देगा, 10 यूनिट्स वो D4 को देगा, तो उसकी 25 यूनिट्स की सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही O3 D1 को 5 यूनिट्स देगा, D4 को 5 यूनिट्स देगा, तो 5 + 5 10 यूनिट्स की उसकी सप्लाई कंप्लीट होगी, राइट। नाउ कम टू D1। D1 में 5 टोटल आया पहले, फिर ऐसे ही D2 जो होगा 15 यूनिट्स O1 से लेगा, 0 यूनिट्स O2 से लेगा, तो उसकी 15 यूनिट्स की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। D3 जो है विल टेक 15 यूनिट्स फ्रॉम O2 और उसकी सप्लाई डिमांड कंप्लीट। ऐसे 10 + 5 आ गया आपके पास 15। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल कि कौन किसको कितने यूनिट सप्लाई करेगा, ठीक है।
अब देखो इस काम को करने में मेरे कितने पैसे खर्च होंगे ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखो व्हाट डज दिस 2, 10, 20, 11 ये इंडिकेट क्या करते हैं? दीज आर द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आपको ये पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे मिली हुई है। तो आप देखो O1 D2 को अगर 1 यूनिट गुड सप्लाई करता है तो उसके 2 रुपीज खर्च होते हैं। तो अगर वो उसको 15 यूनिट सप्लाई करेगा तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, ऐसे ही देखो इधर 7 इंटू 0, 9 into 15, 20 into 10, 18 into 5, 4 into 5. This is the cost incurred, right? So we have to find out the total cost of transporting the goods from various sources to various destination. So we are writing that total cost equal to, तो हमने कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर, ये सेल वैल्यूज को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 7 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 5 प्लस क्या था 18 इंटू 5 20 इंटू 10 20 इंटू 10। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वट एवर वैल्यू यू गेट दिस इज माई cost, right? So my cost, I think it will come out to be rupees 475. So this is the cost, rough estimate that ये काम करने में मुझे almost 475 rupees खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए मुझे ये देखना है कि मेरे पास कितने सर्कल्स आएंगे, क्योंकि ये सर्कल अगर कम आ गए या ज़्यादा आ गए तो इट इंडिकेट्स कि हमारा काम थोड़ा गलत हो रहा है। ठीक है, सो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सेल्स, इनको सर्कल्स को हम बेसिक सेल्स बोलते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सेल्स का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ सोर्सेस प्लस नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस -1। तो देखिए मेरे पास सोर्सेस कितने थे क्वेश्चन में, ये देखो O1 O2 O3 तीन सोर्सेस थे ना हमारे पास इसके अंदर, O1 O2 O3, और हमारे पास डेस्टिनेशंस कितने थे D1 D2 D3 D4। तो तीन सोर्सेज हैं और 4 डेस्टिनेशंस हैं। तो 3 प्लस 4 -1, तो ये आ गए मेरे 6। तो मेरे 6 बेसिक सेल्स आएंगे। तो 6 सर्कल आने चाहिए, तो मेरे भी 6 ही सर्कल आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने काम सही किया है। अब आपने एक चीज और देखिए, एक नोटिस करेंगे हमारे पास, हमने देखा था कि ये देखो इधर पहले क्वेश्चन में दोबारा से देख लो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स आए हैं तो ठीक है। अगर 7 सर्कल आ गए, 6 से ज्यादा सर्कल आ गए तो आपने काम गलत किया है। ठीक है, अब इसमें देखो एक सर्कल के अंदर वैल्यू 0 आई है, जैसे O2 D2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू आई है। अगर एक भी बेसिक सेल आपका 0 आ जाए, एक या एक से ज्यादा बेसिक सेल्स आपके पास 0 आ जाए, तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन इज डीजेनरेट, राइट? तो जनरली हम उसको कम काउंट नहीं करते हैं, तो हम ये बोलेंगे हमारे 5 सर्कल्स आए हैं, तभी आपके फॉर्मूले में मैक्सिमम का वर्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सेल्स। ठीक है, तो वो इसीलिए ये कि 0 को अगर आपने काउंट नहीं किया तो आप बोल देंगे कि मेरे 6 से कम सेल्स आए हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस कि आप 0 भी जरूर लिखा करें उसके अंदर। ठीक है, टेबल के अंदर। तो हम लिख देते हैं इस बात को, सिंस वन ऑफ द बेसिक सेल is 0, it means the solution is degenerate। तो ये degenerate solution आपको मिल गया। अगर ये नहीं आता, आपके सारे सेल्स में पॉजिटिव वैल्यू आ जाती, तो हम बोलते सॉल्यूशन मेरा नॉन डीजेनरेट है, राइट? सो दीज आर द 2 ऑब्जर्वेशंस दैट यू कैन हैव, right? So let us proceed to the next question. Take one more question. So find the initial solution to the given to the transportation problem by LCM। ठीक है, तो देखिए मेरा क्वेश्चन लिखा, सॉरी क्वेश्चन लिख दूं पहले एक बार। अब की बार क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो 1 2 3 4 3 4 3 2 2 5 1 एंड 9। ओके, और यहाँ पर आपकी सप्लाई वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 30 50
एंड 20, और यहाँ पर आपकी डिमांड वैल्यूज गिवन है, दैट इज 20, ऐसे बना लेते हैं 20, 40, 30 एंड 10, राइट। दीज आर द डिमांड वैल्यूज गिवन टू। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो पहले क्वेश्चन का मीनिंग भी देख लेते हैं। आप अब देखो क्वेश्चन में ना सोर्सेज का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इनको कोई भी नाम दे दो, सपोज S1, S2, S3, और डेस्टिनेशंस का नाम मैंने ले लिया D1, D2, D3, D4। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 3/4 टेबल होगी, कितने भी सोर्सेज हो सकते हैं, कितने भी डेस्टिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब सब इसका मीनिंग क्या है, देखो S1 अगर D1 को 1 यूनिट ऑफ गुड सप्लाई करेगा तो 1 रुपी पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, ठीक है। S1 अगर D2 को 1 यूनिट गुड सप्लाई करेगा तो 2 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। तो ये तो एक जनरल मीनिंग है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, आप कोई भी मेथड लगाएंगे तो दिस मीनिंग विल रिमेन सेम ऑलवेज, ठीक है। तो S1 अगर D3 को गुड सप्लाई करेगा तो 3 यूनिट्स की कॉस्ट एनकर होगी। तो ये इस तरीके से कॉस्ट वैल्यूज गिवन है, और D1 की डिमांड है 20 यूनिट्स की, D2 की 40 यूनिट्स, D3 की डिमांड 30 यूनिट्स की है, D4 की 10 यूनिट्स की है, S1 के पास 30 यूनिट्स, S2 के पास 50, S3 के पास 20 यूनिट्स। तो ये सब उसकी सप्लाई गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह पहले चेक करेंगे कि प्रॉब्लम मेरी बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो टोटल डिमांड निकालिए। टोटल डिमांड है मेरी 20 + 40 + 30 + 10, ठीक है, ये वाली दिस वन, इस वाली उसका टोटल लिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 100 यूनिट्स आ गए, ठीक है। नाउ सिमिलरली वी विल टेक द टोटल ऑफ सप्लाई कॉलम। ये कंडीशन जरूर चेक करनी है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो 30 + 50 + 20, so 30 + 50 + 20, so this is my 100 units. So total demand equal to total supply हमारे पास आ गया है। So our problem is balanced. This implies transportation problem is balanced, right? Once the problem is balanced, we can apply least cost method. अब हम क्वेश्चन को अपनी फॉर्म में जरूर लिखेंगे, विदाउट राइटिंग द क्वेश्चन इन योर फॉर्म यू विल नॉट सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन को ठीक से लिखना नहीं आया तो भी गलती बहुत होती है। सो D1, D2, D3, D4, S1, देखो 2 कॉपी की लाइन जो होती है ना, उसके अंदर एक सेल बनाया करो, तो टेबल हमेशा खुली खुली बनेगी आपकी अच्छे से। S1, S2, S3, राइट। अब ये देखो, राइट। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगी, इसके अंदर कॉस्ट वैल्यूज आर ऑलवेज रिटन एट द कॉर्नर। सो 134, 232, 325, 419, राइट। तो मेरे सप्लाई वैल्यूज क्या आएंगी, ये देखो 30, 50, 20, और डिमांड वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट आर माई 20, 40, 30 एंड माई 10। दीज आर माई डिमांड वैल्यूज, राइट। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही लीस्ट कॉस्ट सेल को ढूंढो। अब देखो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, S1 D1 पे भी 1 यूनिट 1 रुपी पर यूनिट की कॉस्ट है, और S2 D4 पे भी 1 रुपी है, तो 2 मिनिमम कॉस्ट सेल मिल गए। तो अब मैं कौन से वाले पे एंट्री करूं, देखो अगर सपोज मैं सोचती हूँ कि एंट्री मुझे यहाँ करनी है, ठीक है, तो मुझे D1 के नीचे क्या दिखाई दे रहा है, डिमांड है 20, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई क्या है मेरे पास 30 की। तो 20 और 30 में मिनिमम क्या है 20, तो मेरा यहाँ पे सेल में कितना आ जाना चाहिए था 20। अब इस वाले में देखो जरा, इसमें कितना आएगा, अगर मैं इसके नीचे देखती हूँ डिमांड में तो 10 आ गया, और इसके सप्लाई में देखती हूँ तो 50, तो 10 और 50 का मिनिमम है 10, ठीक है ना, तो मेरा 10 आना चाहिए। तो आप वैसे करने को कोई सा भी सेल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि सब आपको रफ एस्टिमेट दे रहे हैं, बट आइडियली व्हाट वी शुड डू इज कि हमें मैक्सिमम गुड्स सप्लाई कर देने चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर सर्कल में दे रहा है उसको लेंगे, ठीक है। तो आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन, कि अगर मिनिमम कॉस्ट सेल एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो आप हर एक का करके देख लो, हर एक का देख लो करके कि कहाँ पे सर्कल में बड़ा नंबर आ रहा है। तो जो नंबर बड़ा देगा सर्कल के अंदर, हम उस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि S2 D4 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी 10 की एंट्री आ रही है,
और S1D1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी 20 की एंट्री आ रही है, तो मैं कौन सी वाली एंट्री ले लूंगी, S1D1, राइट। सो मेरी एंट्री यहाँ आएगी। अब ये देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी, D1 के नीचे लिखा है 20, S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है 30, तो 20 और 30 का मिनिमम आ गया 20, तो मैंने 20 लिख दिया। और 20 क्योंकि मैंने डिमांड कॉलम से हटाया है, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पे और दूसरी साइड पर माइनस कर देंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री करते समय मिनिमम कॉस्ट देखो फिर से, चलो अब ये चांस की बात है कि यही वाला 1 बच गया था, तो अब यहाँ एंट्री आ जाएगी, तो किसी बच्चे ने पहले दूसरी करी हो और अब ये वाली करी हो, या वाइस वर्सा, दोनों ही ठीक है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सेल कट भी जाता है। ठीक है, सो आपको इसके लिए बॉदर नहीं करना, आप जो नंबर बड़ा दे रहा हो सर्कल में आप उसको ले लिया करो। ठीक है, तो देखो D4 के नीचे मेरे पास है 10 और D4 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी सप्लाई जो मिल रही है that is 50, so I take the minimum, so I take 10 from here, I cross it like this and 50 minus 10 आ गया मेरा 40। ठीक है, अब मिनिमम कॉस्ट सेल फिर से देखो कहाँ पर है, तो अब देखो आप 3 मिनिमम कॉस्ट सेल आ रहे हैं मेरे, 2 2 और 2, तीनों में एंट्री करके देख लो क्या आएगी। देखो सपोज कर लो मैं यहाँ पर एंट्री करने की सोचती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, नीचे डिमांड कॉलम में 40 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई कॉलम में 10 है, तो मेरा यहाँ पर आएगा वैल्यू 10। ठीक है, अभी हमने छोटा सा लिख के रख लिया, देख लेंगे किस में एंट्री करनी है। इस वाले 2 को लेते, तो ये देखो इस वाले 2 को लेते हैं, तो यहाँ पर मेरा नीचे डिमांड है 30 की और सप्लाई है मेरी 40 की, राइट। तो मेरा मिनिमम क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, यहाँ पे 30 आ रहा है। इस वाले 2 को देखो, यहाँ पे इसमें नीचे डिमांड में मेरे पास आ रहा है 40 और सप्लाई में मेरे पास आ रहा है 20, तो जो मिनिमम होगा मैं उसको ले लूंगी। तो मेरे पास मिनिमम क्या आ रहा है यहाँ पे 20, तो आप देखो एक तरफ 10 आ रहा है, एक तरफ 30 आ रहा है, एक तरफ 20 आ रहा है, तो जो मिनिमम है, जो मैक्सिमम नंबर दे रहा है हमें सर्कल में, हम वो लेंगे। ठीक है, तो हम 30 वाला ले लेते हैं और बाकी दोनों इरेज कर देते हैं, राइट। इन दोनों को हम नहीं ले रहे। ठीक है, राइट। चलिए 30 हमने यहाँ पे ले लिया। 30 क्योंकि मैंने डिमांड कॉलम से हिलाए थे, तो 30 मैंने यहाँ से काट दिए और 30 माइनस 10 करके मेरा 10 आ गया, राइट। अब मिनिमम कॉस्ट सेल देखो हमारे पास कितने बचे हैं, एक 2 है, एक 3 और एक 2 है, तो इनमें मिनिमम कौन सा है, ये 2 और ये 2। फिर से देखते हैं 2 10 इसमें क्या आएंगे इन दोनों में। ठीक है, सपोज कर लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, तो S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई है 10 की और डिमांड है 40 की, तो मेरा यहाँ 10 आना चाहिए। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो S3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक तरफ 20 है, एक तरफ 40 है, तो 20 आना चाहिए, तो बड़ा नंबर 20 है, तो मैंने 20 नंबर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैंने रब कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो मैंने 20 लिया, 20 मेरे यहाँ से उठाए हैं, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया और यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, राइट। नाउ माई नेक्स्ट मिनिमम इज अगेन 2, तो अब इस 2 पे लेते हैं एंट्री। ठीक है, अब इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग supply is 10, demand is 20, so I take 10 because 10 is the minimum one, so 10 we have taken from supply, so cancel it like this and take the difference on the other side, right। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, लास्ट सेल मेरे पास क्या बचा है, ओनली 3। अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो सप्लाई में भी 10 बच गया, डिमांड में भी 10 बच गया। अगर आपका सेम नंबर दोनों साइड पे बच रहा है, इसका मतलब आपने काम ठीक किया है, राइट। तो आपने 10 ले लिया, आपकी मर्जी है, 10 डिमांड कॉलम से लिया है तो डिमांड को काट के सप्लाई साइड पे 0 कर दो, या फिर सप्लाई साइड से लेके डिमांड साइड पे 0 कर दो। ठीक है, तो अब ये मेरी टेबल बन गई। अब चेक करते हैं आंसर हमारा ठीक आया कि नहीं आया। तो देखिए जो ये सर्कल्स आ रहे हैं, इन सर्कल्स का टोटल करो, वो मैच होना चाहिए, रो टोटल और कॉलम टोटल। देखो सर्कल्स में रो वाइज ऐड किया, 20 + 10 30, तो सब 30 की सप्लाई पूरी। सेकेंड वाली रो का टोटल करो सर्कल्स का, देखो 10 + 30 + 10 50 हो गया, तो 50 की सप्लाई पूरी। नेक्स्ट देखो 20 है, तो इधर भी 20 है। अब कॉलम का टोटल करो, देखो D1 कॉलम का टोटल करेंगे सर्कल्स का, तो 20 है, जो कि नीचे की डिमांड 20 से मैच हो गया। D2 का देखिए, D2 के अंदर 10 फिर 10 और फिर 20, इनका टोटल किया सर्कल्स का 20 + 30 + 20 + 10 + 10, तो 40 बन गया, तो मेरा नीचे 40 वाले इससे मैच हो गया। ऐसे ही D3 में देखो 30 आने चाहिए था और D4 में 10 आना चाहिए था। रो टोटल कॉलम टोटल मैच हो गए, तो माय आंसर इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज चेक कीजिए कि जितने सर्कल्स आने चाहिए थे उतने सर्कल आए हैं कि नहीं आए। तो देखिए सर्कल्स कितने आने चाहिए, नंबर ऑफ सोर्सेज प्लस नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस -1। तो देखिए मेरे पास सोर्सेज ये लिखे हुए है ना, तो सोर्सेज मेरे पास कितने हैं, 3 है, 1 2 3। डेस्टिनेशंस मेरे पास कितने हैं, ये लिखे हुए डेस्टिनेशंस, 4 डेस्टिनेशन है, तो 4 हो गए, तो 3 + 4 - 1
7 माइनस 1 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 सर्कल्स आए हैं, तो मेरा काम ठीक है। ठीक है, तो अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखो, टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका वही रहेगा आपका, हमेशा कॉस्ट एलिमेंट को सर्कल से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, पहले सर्कल में 1 कॉस्ट है और 20 उसका सर्कल है, तो 1 इंटू 20। ठीक है, फिर 2 इंटू 10, देन 3 इंटू 10, 2 इंटू 20, राइट, सॉरी, प्लस 2 इंटू 30, राइट, प्लस 1 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस मच कॉस्ट विल बी एनकर्ड, राइट। तो दिस कम्स आउट टू बी, करके देखना पड़ेगा ये कितना आ रहा है आपका। ये देखिए, 20 प्लस 20 प्लस 30, 40, 60 और 10। सो ये आ गए मेरे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, 180 रुपीज। ठीक है, सो दिस इज द कॉस्ट एनकर्ड। ठीक है, तो बाय एलसीएम तो हमें पता चला कि हमारा ऑन एन एवरेज 180 रुपीज में ये काम किया जा सकता है। और करने का तरीका क्या है, S1 D1 को 20 यूनिट्स देगा, S1 D2 को 10 यूनिट्स देगा, S2 D2 को 10 यूनिट्स देगा, S2 D3 को 30 यूनिट्स देगा। इस तरीके से आप इनका मीनिंग निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो अब बच्चों, आपके पास कोई भी बुक हो, उसमें से क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग ये क्वेश्चंस ट्राई करके रखना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लो। मैं आई विल बी कंप्लीटिंग द पेपर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग विच इज़ बिंग टॉट एट कॉलेज लेवल। बीबीए के बच्चे भी पढ़ते हैं, बीसीए में भी आता है, ऑनर्स जो बच्चे करते हैं उनमें भी आता है, बीटेक के बच्चों को भी पढ़ना होता है ये पेपर। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का है, तो मैं तकरीबन सारा कोर्स आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, दैट आई विल बी कवरिंग इन माय वीडियोस, और उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस आपको यहीं करा दूंगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, आप उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई किया कीजिए, उससे आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस यहीं हो जाएगी सारी, राइट। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। 16, 13, दिस इज 13, 18। और बच्चों, जैसे आप पढ़ते हो यहाँ पे, तो वीडियो पॉज करके लिखा जरूर करो साथ के साथ। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तो दूसरा क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व करो और फिर वीडियो देखो कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया। और होमवर्क जरूर किया कीजिए, जो मैं होमवर्क आपको देती हूँ ये जरूर करें आप। ठीक है, अच्छा, ऐसा हो सकता है लीस्ट कॉस्ट मेथड में आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाए और मेरा डिफरेंट हो। वो तब होता है जब टाई हो रहा होता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कितनी बारी 2 आ रहा था, उसके अंदर टाई हो रहा था। जब टाई हो रहा होता है तो आंसर डिफरेंट आ सकता है आपका। तो आपको परेशान नहीं होना कि मेरी कॉस्ट डिफरेंट आई है, बस आपको मैंने चेक करने का तरीका बताया, रो टोटल कॉलम टोटल देख लिया करो, वो सब सही है तो आपका आंसर भी ठीक है। क्योंकि फाइनल आंसर हमें ये रफ एस्टिमेट्स मिल रहे हैं, हमें फाइनल आंसर नहीं मिल रहा। फाइनल आंसर तो अभी निकालना है हमें, उसके लिए दूसरा एल्गोरिथम, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का आया है ये ₹12825। किसी बच्चे का चेंज भी हो सकता है आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी टाई का है, इसमें भी टाई हो जाता है। टाई मीन्स सेम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट सेल एक से ज़्यादा आ जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और बहुत आसान मेथड है ये। अच्छा, कभी भी सर्कल में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, 0 आ सकता है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर आ रहा होगा आपका क्वेश्चन 37। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव। D1, D2, D3। और बच्चों, पूरी वीडियो देखा करो ताकि कंप्लीट टॉपिक आपको समझ आए।
मैं डिटेल में इसीलिए कराती हूँ कि बच्चों को आप पूरा टॉपिक कवर हो। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस नोट कीजिएगा वीडियो पॉज करके, और फिर इनको अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सॉफ्टवेयर से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो सिखा दूंगी, तो आप अपने सारे क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करके सॉफ्टवेयर पे चेक कर लेना कि आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर वीडियो को बनाने में। अभी पहले मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी, इसके अंदर 61 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। ठीक है, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देती हूँ आपकी बारी। देखो, 2, 11, 10, 3, 7, 1, 3, 4, 9, 7, 4। मेथड ईजी है पर थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। बच्चों से सर्कल लिखना भूल जाते हैं, निकाल लेते हैं पर सर्कल लिखना भूल जाते हैं, तो ऐसी गलतियां बच्चों से होती हैं। तो पहले आप लोग जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको कराए हैं क्लास में, पहले वो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आप अपने अ, ये वाले होमवर्क वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका आंसर बच्चों मेरे पास है नहीं, तो आप निकाल लेना। आई डोंट हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक काफ़ी हो गए हैं क्वेश्चंस, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना। कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर्स लिख के देना। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर क्वेश्चन नंबर 1 का या 2 का कोई डिफरेंट आंसर आपका आ रहा है तो वो भी लिखना, मैं चेक करूंगी सब बच्चों का। ठीक है, सो आई थिंक आई शुड वाइंड अप द लेक्चर हेयर। So in the next video we will be learning about that वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।